In the data link layer design issues, we are going to study the error control codes. When the data is transmitted from the transmitter to the receiver, when the data is transmitted from one computer to the another computer, from one host to the another host through a wired channel or a wireless channel, the data gets corrupted into the channel due to various reasons. Okay, so there must be some technique through which the error should be controlled, through which the error should be detected and corrected. So this error control code is classified into two types, whether it will detect the error at the receiver, or if the data is corrupted it can correct the error. Okay, so error detection is one of the method to control the error, and error correction is one of the method of correcting the error. For detection of error, there are various methods used for error detection. Here you can see parity check parity check code is one of the method, checksum method and CRC, cyclic redundancy check. These three methods are used for error detection in error control codes. For correcting error, there are many methods. Here I have listed some of them, that is Hamming code is one of the method, linear block code, cyclic code and convolutional code. Okay, these are the method used for error correction. These are the techniques used for error control, and in the error control it can correct the error. In this lecture we will concentrate on only parity check codes. What is parity check code? And in the next video likewise we will continue with checksum method, CRC and all other methods for error detection and correction. First we will start with the parity check method. What is this parity check method? I have drawn the encoder and decoder for parity check method, but before going to discuss or before going to explain the operation of an encoder and decoder, first we should be able to understand what is parity check code. इसमें क्या करते हैं हम? इसमें क्या करते हैं? Actually when we need to send the information, and information is always in binary form. हमको पता है कि information जो भी रहेगी वो binary में रहेगी. It will be in the form of zeros and ones. Okay. Suppose the information is 1011. This is the information. Okay. This is the data we need to send. Okay. So what we will do? We will encapsulate one extra, or that is called as the redundant bit. एक एक्स्ट्रा बिट जिसको हम बोलेंगे रिडंडेंट बिट, इस ओरिजिनल इंफॉर्मेशन के साथ अटैच करेंगे, इनकैप्सुलेट करेंगे. क्यों करेंगे अटैच? क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा बिट है वो डिफाइन करेगा कि ये डेटा करेक्टली मीन्स रिसीव हुआ है कि नहीं है. वो रिसीवर साइड पे होगा, हम देखेंगे. पहले ये जो बिट है रिडंडेंट बिट, एक्स्ट्रा बिट, this extra bit depends on the number of ones in the input information. ठीक है, we know the even number 2, 4, 6, 8 these are the even numbers and 1, 3, 5, 7 are the odd numbers. अभी हम इसमें देखेंगे number of ones कितने हैं. Number of ones are 1, 2, 3. 3 is an even number or odd number. 3 is an odd number. तो इसका even parity bit क्या रहेगा? इसका even parity bit रहेगा 1. क्यों रहेगा 1? क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ वंस है वो कितने हैं? 3 है. 3 एक ऑड नंबर है. टू बिकम इट इवन वी नीड वन मोर वन. ठीक है, इसको इवन बनाने के लिए एक और 1 लगेगा, तो इसके लिए इवन पैरिटी रहेगा या 1. अब ये पैरिटी जो है या रहेगा इवन या रहेगा ऑड. ठीक है, इवन पैरिटी कब रहेगा? जब नंबर ऑफ वंस ऑड रहेंगे तो इवन पैरिटी 1 रहेगा, जब नंबर ऑफ वंस इवन रहेंगे तो ऑड पैरिटी 1 रहेगा. ठीक है, जैसे हम कंसिडर करते हैं कि 1 0 0 1 0 0 1. इफ दिस इज द डेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 2. 2 इज एन इवन नंबर, तो इसका इवन पैरिटी बिट क्या रहेगा? 0 रहेगा. ठीक है, इट इज 0. ऐसे ही अगर सपोज इसका ऑड पैरिटी बिट फाइंड आउट करना है, दिस इज एन इवन पैरिटी, इफ यू फाइंडिंग द ऑड पैरिटी, ऑड पैरिटी बिट क्या रहेगा? हियर द नंबर ऑफ वंस आर 2. 2 इज एन इवन नंबर, सो द ऑड पैरिटी विल बी 1. यहाँ पे ऑड पैरिटी 1 रहेगा. ठीक है, तो होता क्या है एक्चुअल में कि इनपुट इंफॉर्मेशन में जितने नंबर ऑफ वंस है उस पर हम डिसाइड करते हैं
कि ट्रांसमीटर डिसाइड करेगा कि उसको क्या सेंड करना है, इवन पैरिटी सेंड करना है कि ऑड पैरिटी सेंड करना है। कोई भी एक पैरिटी रहेगी, दोनों पैरिटी अटैच नहीं करेंगे, ठीक है। ओनली वन एक्स्ट्रा बिट वी आर गोइंग टू इनकैप्सुलेट विद द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, दैट बिट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वंस इन द इनपुट इंफॉर्मेशन, ठीक है। कोई भी इनपुट इंफॉर्मेशन ले लो, सपोज 1 1 1 1 और हम लेते हैं इवन पैरिटी, ठीक है। 1 1 1 1 नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 4, 4 इज एन इवन नंबर, तो इवन पैरिटी बिट क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। अगर हम इवन पैरिटी नहीं सेंड कर रहे हैं, ऑड पैरिटी सेंड कर रहे हैं, तो इसका ऑड पैरिटी बिट क्या रहेगा, नंबर ऑफ वंस आर 4, 4 इज एन इवन नंबर, तो ऑड पैरिटी रहेगा 1, ठीक है। ऐसे डिसाइड होगा कि किसी भी इंफॉर्मेशन के साथ में या फिर हम सेंड करेंगे इवन पैरिटी या फिर सेंड करेंगे ऑड पैरिटी, ठीक है। वो ऑड पैरिटी का बिट जब रिसीवर पे रिसीव होगा, हमने कंसीडर किया था ये 4 वंस के लिए ऑड पैरिटी 1, जब रिसीवर पे रिसीव हुआ और इसमें सपोज कोई एक बिट जो है वो करप्ट हो गया, इंस्टेड ऑफ 1 1 1 1 एट द रिसीवर वी हैव रिसीव्ड एज 1 0 1 1, तो अभी ये क्या करेगा, चेक करेगा इनपुट इंफॉर्मेशन विद द रिडंडेंसी। नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 3 नंबर ऑफ वंस क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए ऑड पैरिटी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे ऑड पैरिटी क्या है, 1 है, तो क्या करेगा रिसीवर, उस इंफॉर्मेशन को डिस्कार्ड कर देगा और डिटेक्ट करेगा कि एरर डिटेक्ट हुआ है। दिस इज द मेथड ऑफ पैरिटी चेकिंग, पैरिटी चेक कोड, दिस इज कॉल्ड एज पैरिटी चेक कोड। दिस इज द एनकोडर विच एनकोड द इंफॉर्मेशन, एनकोडर किसको बोलेंगे, जो इंफॉर्मेशन को एनकोड करेगा, एंड डिकोडर विल डिकोड दैट। ये ट्रांसमीटर साइड पे रहेगा, ये रिसीवर साइड पे रहेगा, ठीक है। अगर हम कंसीडर करते हैं 4 बिट पैरिटी, ठीक है, यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि 4 बिट्स का पैरिटी को जनरेट करना है, दैट इज A3 A2 A1 A0, ओके। ये 4 बिट्स रिसीवर में जो डेटा हमको ट्रांसमिट करना है, ये हमारा पैकेट रेडी हो गया है जिसको अभी सेंड करना है, ठीक है। ये कंप्लीट पैकेट किसका है, ये 4 बिट्स तो उसमें रहेंगे ही, और एक्स्ट्रा बिट जो रहेगा वो रिडंडेंसी डिपेंड करेगा पैरिटी पे, ठीक है। दिस रिडंडेंसी विल डिपेंड्स ऑन द पैरिटी बिट। ये पैरिटी बिट या इवन रहेगा या ऑड रहेगा, ये इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है, ओके। हम कंसीडर करते हैं कि इवन है, यहाँ पे हम लेते हैं कि इवन पैरिटी हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ऑड नहीं रहेगा, इवन रहेगा तो ऑड नहीं रहेगा, ऑड रहेगा तो इवन नहीं रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है, ये 4 बिट्स कमिंग टू दिस साइड एंड पैरेलली दीज 4 बिट्स आर गिवन टू द जनरेटर। ये जनरेटर का क्या काम है, ये जनरेटर डिसाइड करेगा कि इनपुट इंफॉर्मेशन में जितने नंबर ऑफ वंस है उस पर डिसाइड करेगा कि पैरिटी बिट क्या होना चाहिए, ठीक है। सपोज यहाँ पे इंफॉर्मेशन है 1 1 0 1, ओके, 1 1 0 1, ये जनरेटर के पास भी जाएंगे, पहले यहाँ पर तो आ जाएंगे 1 1 0 1, ओके। दिस इंफॉर्मेशन विल कम ओवर हियर एंड पैरेलली इट इज लोडेड इनटू द जनरेटर। जनरेटर क्या करेगा, 1 1 0 1, इसको ऑब्जर्व करेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ वंस है। हियर द नंबर ऑफ वंस आर 3। हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, इवन पैरिटी। इवन पैरिटी बिट अगर नंबर ऑफ वंस 3 है तो क्या होना चाहिए, एज द इंफॉर्मेशन इज ऑड, नंबर ऑफ वंस आर 3, तो इसका इवन पैरिटी बिट 1 होगा, ठीक है। तो ये जनरेटर क्या जनरेट करेगा, 1, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वंस ऑड थे, इसके लिए इवन पैरिटी 1 रहेगा। फिर ये 1 यहाँ पे उसको अटैच कर देगा, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन के साथ में ये 1 को अटैच कर देगा। देन यहाँ पे एनकोडर का काम खत्म हुआ। अभी एनकोडर क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा अनरिलायबल ट्रांसमिशन के थ्रू, ठीक है, इसको ट्रांसमिट करेगा। जब ये रिसीवर पे आएगा, ठीक है, रिसीवर पे आएगा तो हमने यहाँ पे ए से इंडिकेट किया है, यहाँ पे बी से इंडिकेट किया है। क्यों, क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि ये ए ही रिसीव हुआ है, मे बी सम अनदर इंफॉर्मेशन मे बी रिसीव्ड, इसके लिए इसको ए से इंडिकेट किया है और यहाँ पे बी से इंडिकेट किया है। जहाँ पे रिडंडेंसी भी चेंज हो सकती है, इसलिए इसको आर से रिप्रेजेंट किया है, इसको क्यू से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अभी जो इन्फॉर्मेशन रिसीव हुआ है वो इन्फॉर्मेशन एक तो डिसीजन लॉजिक के पास जाएगा। डिसीजन लॉजिक ये एक लॉजिक सर्किट है जो दोनों इनपुट एक्सेप्ट करेगी। कौन से, एक तो इनपुट लेगी डेटा से और दूसरा इनपुट लेगी सिंड्रोम से। अभी सिंड्रोम क्या होता है देखते हैं, ठीक है।
ये जब सारे इंफॉर्मेशन, जब सारे बिट्स रिसीव हो गए, 4 बिट्स विद द रिडंडेंसी, ऑल आर अप्लाइड टू द चेकर। चेकर क्या करेगा? चेक करेगा। चेकर क्या चेक करेगा? ये डेटा था हमारा, ठीक है, व्हाट डेटा वी हैव ट्रांसमिटेड 1101, इसके साथ रिडंडेंसी थी 1, ठीक है। तो चेकर क्या करेगा? पहले साइड में ये लेगा इनपुट और दूसरे साइड से ये लेगा इनपुट, और इन दोनों को लेके चेक करेगा कि दोनों का मैच हो रहा है क्या। नंबर ऑफ वंस यहाँ पे कितने हैं? ऑड है। ऑड नंबर ऑफ 1 के साथ पैरिटी क्या है? इवन पैरिटी 1 है। इवन पैरिटी 1 है तो चेकर क्या करेगा? सिंड्रोम को जनरेट करेगा कि यस और नो, ठीक है। अगर सिंड्रोम ये बिट डिसाइड करेगा कि ये पैरिटी करेक्टली रिसीव हुआ है कि नहीं, और फिर लॉजिक, डिसीजन लॉजिक क्या करेगा कि ये सिंड्रोम को और ये इनपुट इंफॉर्मेशन को चेक करेगा कि वेदर द इनपुट इंफॉर्मेशन इज मैच्ड विद द रिडंडेंसी और नॉट। अगर मैच होता है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लेगा। इफ they are not matching, suppose during the transmission this bit is corrupted, instead of 1 it is received as 0, ठीक है। अगर ये 0 हो गया, फिर दोनों को चेक करो, देखो यहाँ पे इवन पैरिटी बिट क्या आना चाहिए था? नंबर ऑफ वंस इवन है तो इवन पैरिटी बिट 0 आना चाहिए था, यहाँ पे 1 आया, मीन्स ये इससे मैच नहीं हुआ, ये कंप्लीट पार्ट इससे मैच नहीं हुआ। ये मैच नहीं होगा तो वो क्या करेगा? लॉजिक डिसीजन विल डिस्कार्ड द इंफॉर्मेशन। ओके, इन दिस वे द एरर इज डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ पैरिटी चेक कोड। इस मेथड से हम पैरिटी चेक कोड का एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसमें देखेंगे कि नंबर जो है वो इवन पैरिटी है या ऑड पैरिटी है, तो उससे आपके एग्जांपल और क्लियर हो जाएगा। यू विल गेट मोर एग्जांपल, देन यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। डेटा वर्ड, सपोज डेटा वर्ड इज देयर and the code word। कोड वर्ड, अभी देखो डेटा वर्ड अगर ये होता है, सपोज डेटा है 1110, ओके 12 13 14 15, ओके, दिस इज द डेटा वर्ड। 4 बिट का डेटा वर्ड ये है, तो इसके लिए कोड वर्ड क्या रहेगा? अगर हम इवन कंसीडर करते हैं तो, ठीक है, इवन पैरिटी के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 1100 तो एज इट इज रहेगा। इसके साथ रिडंडेंसी क्या आएगी बताओ? अगर इवन पैरिटी है, रिडंडेंसी क्या आएगी? नंबर ऑफ वंस आर इवन, तो इवन पैरिटी बिट इज 0, ओके। यहाँ पे 1101 एज इट इज आएगा, ठीक है। हियर द नंबर ऑफ वंस आर ऑड, तो इवन पैरिटी 1 हो गया। हियर 1110 नंबर ऑफ वंस आर ऑड, तो इवन पैरिटी क्या रहेगा? 1 रहेगा। हियर द नंबर ऑफ वंस आर इवन, ऑलरेडी इवन है तो इवन पैरिटी बिट क्या रहेगा? 0 रहेगा। ऐसे हम डिसाइड करेंगे किसी भी इनपुट इंफॉर्मेशन के लिए इवन पैरिटी बिट क्या रहेगा और ऑड पैरिटी बिट क्या रहेगा। सिंपली इस मेथड में क्या होता है कि इनपुट इंफॉर्मेशन में नंबर ऑफ वंस चेक करते हैं कि नंबर ऑफ वंस इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो उसका इवन पैरिटी बिट 0 रहेगा, और अगर ऑड है तो उसका इवन पैरिटी बिट 1 रहेगा, ठीक है। अगर हम ऑड पैरिटी चेक कर रहे हैं, इफ नंबर ऑफ वंस आर इवन देन द ऑड पैरिटी विल बी 1। लाइकवाइज वी कैन डिसाइड द पैरिटी, और ये पैरिटी बिट हम चेक करने के बाद में उसका एक रिडंडेंसी जो है वो इनकैप्सुलेट कर देंगे ओरिजिनल इंफॉर्मेशन के साथ में, और उसको फिर ट्रांसमिट करेंगे रिसीवर पे। डिसीजन डिवाइस विल टेक द डिसीजन वेदर टू एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन और नॉट। वो दोनों इंफॉर्मेशन को, रिडंडेंसी को डेटा के साथ में चेक करेगा। अगर दोनों मैच होते हैं तो उसको एक्सेप्ट करेगा, इफ दे आर नॉट मैचिंग देन इट विल डिस्कार्ड द इंफॉर्मेशन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट पैरिटी चेक कोड। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे चेकसम मेथड क्या होता है। ओके, थैंक यू।